اس کام میں تین چیزیں یہ بہت ضروری ہیں. ایک میٹھی زبان. میٹھی زبان. وہ ایک مرتبہ میں آ رہا تھا تو ایک ٹرک سامنے سے گزر رہا تھا یہاں رائے گنج آتے ہوئے. وہ ٹرک پہ لکھا ہوا بڑی کام کی چیزیں ہوتی ہیں وہ لکھنے والے لکھ دیتے ہیں. تو وہ ٹرک پہ لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت. کیا برائے فروخت؟ سائٹ نہیں، پلاٹ نہیں. کیا برائے فروخت؟ دل برائے فروخت. اور آگے لکھا تھا قیمت 2 میٹھے بول. میں کہا یا اللہ دیکھو کیسی پیاری بات لکھی ہے، دل برائے فروخت، قیمت 2 میٹھے بول. تو بھائیو دعوت کے کام کے لیے یہ تین چیزیں ہیں کام کرنے والے ساتھیوں کے لیے. ایک میٹھی زبان. میٹھی زبان. کھینچی نہیں کہ جہاں سے چلی کاٹتی چلی گئی. میٹھی زبان سب کو جوڑنے والی، اس سے دل جڑ جاتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی ایک بول بولتا ہے، ایک کلمہ بولتا ہے، ایک بول بولتا ہے، اور اسے اس بول کی اہمیت کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس بول کی وجہ سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اسے اللہ اس بول کی وجہ سے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. ایک کلمہ بولتا ہے، بول بولتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ جو میں بول رہا ہوں یہ کتنی اس کی اہمیت ہے، اور اس بول سے بچھڑے ہوئے جڑ جاتے ہیں. اور اللہ پاک اس بول کی برکت سے اسے جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے. اسی طرح آدمی ایک بول بولتا ہے، اس کی خباثت کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے لوگ ٹوٹتے ہیں اور یہ جہنم کے گڑھوں میں گرا دیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ 2 چیزوں کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 چیزوں کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. 2 جبڑوں کے درمیان کی چیز اور 2 رانوں کے درمیان کی چیز، اس کی حفاظت کر لو میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں. تو نیچے بول. گنا کدھر سے میٹھا ہے بھائی؟ گنا کہاں سے میٹھا ہے؟ کہیں سے بھی کھاؤ وہ میٹھا ہے، اوپر سے نیچے سے درمیان سے. ہاں کم زیادہ ہوگا میٹھا، لیکن میٹ چاروں طرف سے اوپر سے نیچے سے میٹھا ہے. اور کریلا وہ کہاں سے میٹھا ہے؟ اوپر سے میٹھا ہے نیچے سے میٹھا ہے؟ وہ ہر طرف سے کڑوا ہے. گنا ہر طرف سے میٹھا ہے، کریلا ہر طرف سے کڑوا ہے. تو زبان جو ہے وہ کریلی کی زبان نہ ہو کہ جہاں چلی وہاں کاٹ دیا. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ واپسی کی ہدایات دیتے تھے. واپس جانے والوں کو ہدایات دیا کرتے تھے. اس میں عجیب باتیں فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ فرمایا کہ پھول بن کے جیو، کانٹا بن کے مت جیو. واپسی والوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے معاشرے میں پھول بن کے رہو، کانٹا بن کے مت جیو. کہ پھول سب کو پسند ہے، خوشبو اس کی سب کو پسند ہے، اور کانٹا
सबको चुभता है। अरे ये हम लगे तो भी चुभे, वो लगे, हम लगे तो भी चुभे, वो लगे तो भी चुभे। फरमा कहते कांटा बन के माशरे में मत रहो, फूल बन के माशरे में रहो। और फिर फरमा देते कि कभी आदमी कहता है कि मैंने क्या किया, मैंने तो एक बात कही, मैंने तो एक बात कही। अरे भाई तेरी एक बात, लेकिन वो दिलों को जख्मी कर गई। ये हजरत फरमाया करते थे वापसी की हिदायत में कि भाई मैंने क्या किया, मैंने कोई थप मारा, मैंने कोई मुक्का मारा, क्या किया मैंने कोई खंजर मारा, मैंने तो एक बात कही। अरे भाई तेरी बात, लेकिन वो दिलों को फाड़ गई, दिलों को जख्मी कर गई। तेरी उस बात ने दिलों को जख्मी कर दिया। तीर और तलवार का जख्म भर जाता है, ज़बान का जख्म नहीं भरता। तो साथियों को के साथ मीठे रहना है। एक निकाह हो रहा था तो लोगों ने कहा कि हजरत कारी साहब से कहो कि ज़रा कुरान पढ़ दे, बरकत हो जाएगी। तो अर्ज़ किया कि कारी साहब ज़रा कुरान पढ़ दीजिए। तो कारी साहब ने शुरू किया अत्तलाक़ु मर्रतान, रुकू वहाँ शुरू होता है। तो उन्होंने रुकू शुरू किया अत्तलाक़ु। अरे पूरे कुरान में यहाँ पढ़ने के लिए तुम्हें यही आयत मिली? पूरे कुरान में इस मौके पर पढ़ने के लिए यही आयत मिली तुम्हें? तो भाइयों वही हुजूर वाली बात, हुजूर वाली बात, अजीब बात, अल्लाह के प्यारे नबी की बात कि दो बातों की जमानत ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत लेता हूं। दो बातों की, दो जबड़ों के दरमियान की जबान, तब इसकी हिफाजत कर लो, मैं जन्नत की तुम्हारे लिए जमानत लेता हूं। तो काम करने वालों के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। हमारे दो बोल लोगों के जुड़ने का जरिया बनते हैं और हमारे दो बोल उनके कटने का जरिया बनते हैं। जुड़ने का जरिया बने तो बड़ी खैर पाई, कटने का जरिया बने तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक बात। दूसरी बात, ज़बान मीठी और सर ठंडा, दिमाग ठंडा, ठंडा दिमाग। एक साहब ने तारुफ कराया कि ये हमारे इलाके के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। मुझे तारुफ कराया कि ये हमारे इलाके के बड़े सरगर्म कारकुन हैं। मैंने कहा भाई सर गर्म नहीं होने चाहिए, सर तो ठंडा होना चाहिए। हाँ पाँव गर्म हो गश्तें करने के लिए, अबे तो सर गर्म नहीं चाहिए, अबे तो सर ठंडा चाहिए। हाँ पाँव गर्म हो गश्तें करने के लिए, पाँव गर्म हो और सर ठंडा हो। तो ठंडा था। चिंगारियां पड़े तो बुझ जाएं, बर्फ की सिल, चिंगारियां पड़ती हैं तो क्या होता है? बर्फ की सिल पर अगर चिंगारियां पड़े तो क्या होता है भाई जी? बुझ जाती हैं। चिंगारियां बुझ जाती हैं, बर्फ की सिल पर गिरेंगे। और अगर चिंगारी तेल की कढ़ाई पर पड़े तो कढ़ाई में तेल पक रहा है, अगर पानी की का एक खतरा पड़े उस पे, तो तेल कढ़ाई में बन रहा है ना, जलेबी के लिए, जामुन के लिए जो शीरा पक रहा है, अगर उसमें पानी के चंद खतरे पड़े तो क्या होता है? वो मुंह पर वापस आता है, मुंह पर वापस आता है। तो हमारे दिमाग ऐसे हो कि कोई कुछ कहे, आल प्रूफ, क्या भाई? आल प्रूफ, जो मर्जी कहते जो कोई असर ही नहीं होता। बर्दाश्त। तो किसी की बात पर फौरन रद्द अमल,
रिएक्ट करना, रद्द अमल, ये नहीं है, उसे पी जाना, उसे पी जाना। मुनाफिकीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते थे कि वो तो कान ही कान है। मुनाफिकीन कहते थे हुजूर के बारे में कि वो तो कान ही कान है, जो चाहे जाके कहो सुन लेते हैं, जो चाहे उनसे कहो सुन लेते हैं। और पीछे जाके आपस में सरगोशियां करते कि देखा आज मैं क्या कह के आया। ये मुनाफिकीन की हरकत कुरान में बतलाई गई है कि वो जाकर हुजूर की सरगोशियां करते। सरगोशियां यानी चुपके चुपके जाके करीब में बातें करना, और कहते हैं कि वो तो कान ही कान है, जो कहो सब सुन लेते हैं। और फिर वापस आकर एक दूसरे से कहते देखा क्या कह के आया। तो भाइयों, ठंडा दिमाग हो, किसी पर रद्द अमल नहीं। हदीस शरीफ में आता है कि एक आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा है, तुम उसकी 10 बुराइयां जानते हो, वो तुम्हारी एक बुराई कर रहा है, तुम उसकी 10 बुराइयां जानते हो, लेकिन तुम खामोश रह जाओ, उसकी उन 10 बुराइयों का जिक्र ना करो। वो तुम्हारी एक कर रहा है, सुन लो, तुम उसकी 10 जानते हो, ना करो, तुम्हें अल्लाह इसकी बरकत से जन्नत के आला दर्जे देगा। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, हजरत अबू बकर बैठे हुए थे। एक शख्स आया और उसने आकर हजरत अबू बकर को बुरा भला कहना शुरू किया, बुरा भला, उनकी शान के खिलाफ। हुजूर मुस्कुराते रहे। वो हजरत अबू बकर को ऐसी वैसी बातें सुना रहा है और हुजूर खामोश है, खामोश है, मुस्कुराते रहे नहीं, खामोश है। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर ने जवाब दिया। बहुत देर हो गई, बहुत सुन लिया, तो अब कितना सुनेंगे भाई, कोई एक आध जवाब तो दे दो। ये अंदर से उभारता है नफ्स कि भाई कितना सुनेंगे भाई, एक आध जवाब तो दे दो। तो हजरत अबू बकर ने एक जवाब दे दिया। हुजूर उठकर चले गए, हुजूर उठकर चले गए। हजरत अबू बकर पीछे पीछे गए, अर्ज किया कि हुजूर, उसने इतनी बातें मेरे खिलाफ कही, मेरे बारे में इतनी बातें कही, और आप खामोश रहे, बैठे रहे, और मैंने उसकी एक जवाब दिया तो आप उठ के चले गए। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं देख रहा था कि वो तुम्हें बुरा भला कह रहा था, तुम्हारी तरफ से एक फरिश्ता जवाब दे रहा था। तुम जो वो जो तुम्हें बुरा भला कह रहा था, तो तुम्हारी तरफ से एक फरिश्ता जवाब दे रहा था, और जब तुमने जवाब दिया तो वो फरिश्ता चला गया कि मेरा काम नहीं है अब तक तुम खामोश थे, वो फरिश्ता जवाब दे रहा था। जब तुमने जवाब दिया तो फरिश्ता चला गया कि अभी अपना काम खुद कर रहे हैं और वहां शैतान आया, तो मैं वहां नहीं बैठ सकता, मैं उठ के चला आया। तो भाइयों, हमारे साथी हैं, हमारे साथी हैं, ये हमारी मस्जिद की जमात के साथी हैं, ये हमारी मस्जिद की जमात के साथी हैं, ये हमारे शहर के साथी हैं, ये हमारे इलाके के साथी हैं। इनके साथ हमें चलना है, इनके साथ हमें चलना है। चलने के लिए उनके साथ मीठे बोल, दिल बराए फरोख्त कीमत, दो मीठे बोल। तो इनके साथ हमें चलना है, तो हमें उनके लिए मीठी ज़बान रखनी पड़ेगी, और तो दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा कि उनकी बातें, उनकी कोई ऐसी नामुनासिब बात जो हमें पसंद नहीं है, वो आए तो बर्फ की सिल पर पड़कर बुझ जाए, वो पानी के कतरों की तरह तेल पर पड़कर वापस भड़क के ना जाए। तो हमारे ऊपर आई, हमने झेल लिया, उसे बुझ गई वो।
और अगर हमने जवाब दे दिया तो वो उल्टी गई, जैसे कढ़ाई के तेल पर पानी के छींटे पड़े। तो मीठी जबान और क्या जे ठंडा दिमाग और वसी दिल, दिल वसी, दिल वसी, दिल में सबके लिए वसअत है, दिल में सबके लिए वसअत है, सबके लिए दिल में वसअत है। जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं, ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं। ये नबूवत की तालीम है, नबूवत की तालीम है कि जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी, हम जो हमारा भला चाहते हैं हम उनका भला चाहते हैं। ये तो मामला हुआ। जो हमारा बुरा चाहते हैं हम उनका भी भला चाहते हैं। ये नबूवत की तालीम है। और भाइयों, जब हम ये कहते हैं कि हम नबियों का काम कर रहे हैं, ये अल्लाह का काम है, नबियों का काम है। सबसे पहले दाई अल्लाह हैं, वो जन्नत की तरफ दावत देते हैं अपने बंदों को। अल्लाह का काम है, सबसे पहले दाई अल्लाह है। फिर ये हमारे प्यारे नबी का काम है। जब हम ये कहते हैं कि नबियों का काम है तो उनकी सिफात अल्लाह हमें नसीब फरमाए। नहीं है लेकिन उसकी फिक्र रखती है। हमारे हाजी साहब कहने लगे, मुझे बहुत याद आती है हाजी साहब की बातें, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फरमाने लगे कि एक दिन मैंने मौलाना उबैदुल्लाह साहब से ये कहा कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो मौलाना कहने लगे, भाई अब्दुल वहाब यूं मत कहो, यूं कहो कि हमें साथियों के साथ चलना नहीं आता। हाजी साहब ने क्या कहा था कि मौली साहब हमें साथियों को चलाना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या कहा मौलाना उबैदुल्ला साहब ने कि मौली साहब यूं कहो कि हमें उनके साथ चलना नहीं आता। तो अपना कसूर देखना कि हम कैसे चले, हम उनको कैसे चलाएं, ये नहीं है ये कि हम कैसे चले उनके साथ। हाजी साहब कहने लगे, मैं बहुत दिनों के बाद, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद फिर मैंने एक मरतबा अर्ज किया मौलाना उबैदुल्ला साहब से कि मौली साहब हमें साथ, जरा बेतकल्लुफी थी मौलाना उबैदुल्ला साहब में और हाजी साहब में, जरा बेतकल्लुफी थी। तो मैंने एक मरतबा, मुझे याद ना रहा, बहुत दिनों के बाद मैंने एक मरतबा कर अर्ज किया कि मौली साहब हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता, हमें साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो मौलाना उबैदुल्ला साहब बोले कि भाई अब्दुल वहाब यूं कहो कि हमें साथियों के साथ जुड़ना नहीं आता। हमें साथियों के साथ, हाजी साहब ने क्या कहा था, जोड़ना, साथियों को जोड़ना नहीं आता। तो हाजी साहब ने क्या, किस मौलाना उबैदुल्ला साहब ने क्या कहा कि हमें उनके साथ जुड़ना नहीं आता। तो भाइयों काम जो है वो सबके साथ जुड़ना है और सबको जोड़ना है। उसके लिए दिल वसी हो, दिल वसी हो, वसी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल वसी, समंदर की तरह वसी, समंदर की तरह वसी। जानते थे कि ये मुनाफिकीन है, अल्लाह ने बतलाया था कि ये मुनाफिकीन है, लेकिन आपने अपने अमल से कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि आप जानते हैं कि ये मुनाफिक है। वो जाके सरगोशियां करते थे, कान में बातें करते थे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हम कितने करीब हैं हुजूर के, और पीछे जाके आपस में बातें करते थे कि देखो सब कह के आया हूँ कान में। वो तो कान ही कान है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, दिल वसी, दिल वसी।
माँ वो घर के जोड़ का जरिया है। माँ है घर के जोड़ का जरिया, माँ है। चार बच्चे हैं, एक बच्चा डॉक्टर, एक बच्चा इंजीनियर, एक बच्चा मौलाना साहब। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक मौलाना साहब, चौथा बेकार साहब। क्या चौथा चला गया? चौथा बेकार साहब, किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। ये बताइए कि मां की शफकत किसके साथ ज्यादा है? मां की शफकत, बेटे तो चारों हैं, मौलाना साहब के साथ ज्यादा है या डॉक्टर साहब के साथ ज्यादा है या इंजीनियर साहब के साथ, किसके साथ ज्यादा है? अरे जो बेकार साहब है उनके साथ ज्यादा है। जो बेकार है, किसी काम का नहीं है, मां की शफकत उसके साथ ज्यादा है, उसका लगाव उसके साथ ज्यादा है। बाप खफा होता है, गुस्से में आता है, घर से निकाल देता है, निकल जा बाहर, बाहर निकाल देता है घर से। माँ उसे पीछे के दरवाजे से अंदर बुला लेती है और फिर बाप को भी समझाती है, देखो ऐसा मत करो, ये बाहर चला जाएगा तो सारी दुनिया कहेगी कि तुम्हारा ही बेटा है, इसे अंदर ही रखो, इसे अंदर ही रखो, अंदर। बाहर निकाल दोगे तो जो कुछ गली में करेगा, मोहल्ले में करेगा, सारा घर, सारा मोहल्ला तुम्हें ही बदनाम करेगा कि देखो फुला का बेटा है, इसे घर में ही रखो, जो कुछ करता है घर में ही करने दो, इसे बाहर मत निकालो। तो बाप को समझाती है, बेटे को समझाती है, अरे बाप तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तेरा दर्द तेरी भलाई के लिए कह रहा है, तो उसकी बात मान ले, उसे नाराज मत कर, उसकी रजा अल्लाह की रजा है, उसकी नाराजगी अल्लाह की नाराजगी है। तो बाप को भी समझाती है, बेटे को भी समझाती है। तो माँ घर के जोड़ का जरिया है, नबी उम्मत के जोड़ का जरिया है। माँ घर को जोड़ती है, नबी उम्मत को जोड़ते हैं, और दाई अपने सब काम करने वालों को जोड़ता है, सबसे जुड़ जाता है, सबको जोड़ लेता है। अल्लाह नसीब फरमाए हमें, अल्लाह हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है कि अल्लाह पाक उस तरह काम करने की तौफीक दे जिस तरह काम करना उसे पसंद है, उस तरह इस मुबारक इस मेहनत पे चलने की तौफीक दे जिस तरह चलना अल्लाह को पसंद है, और मशवरे के पाबंद होके चलते रहे। कोई काम, मैंने शुरू में अर्ज किया कि यहाँ इस दावत के काम में इज्तिहाद नहीं है, तकलीद है। इज्तिहाद क्या? अपनी समझ से करना, तकलीद क्या? बड़ों से पूछ के करना, सलामती का रास्ता है। और मीठी ज़बान, ठंडा दिमाग, वसी समंदर की तरह सबको समो लेता है। अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआएं मांगनी है और अपनी मेहनत में चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, और मांगते रहना है, चलते रहना है और मांगते रहना है। कभी शैतान ये भी धोखा देता है कि इतने दिनों से चल रहे हैं, भाई 5 दिन के पुरानों के जोड़ में रायगढ़ में जितनी बातें सुनी, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, कोई भी अंदर पैदा ना हुई, इतने दिनों से चल रहे हैं, ये कहाँ कुछ भी नहीं पैदा हुआ, तो क्या करो?
क्या करो? हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे लगे रहो। हजरत जी हमारे क्या फरमाया करते थे? लगे रहो, लगे रहो। जो आना है वो आता चला जाएगा, जो आना है वो आता चले जाएगा। हमारा काम, हजरत के जुमले दो एक दो अल्फाज होते थे, लेकिन वो पूरा समंदर होता था। फरमाते थे लगे रहो, लगे रहो। जो आना है वो इंशाअल्लाह आता चला जाएगा। और हमारे मौला इब्राहिम साहब एक मिसाल देते हैं कि आम के दरख्त में जब आम लगता है, पिंदा छोटा सा, उसका साइज छोटा, उसका रंग हरा, खुशबू कुछ नहीं, मजा कड़वा कसाला। लेकिन जब लगा रहता है, दरख्त में लगा रहता है, लगा रहता है, आम के दरख्त में आम का पिंदा लगा रहता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता है, फिर उसमें रंग आता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज बढ़ता है, उसमें फिर रंग आता है, और फिर अल्लाह अपनी कुदरत से उसमें रस भरते हैं, रस भरते हैं। तो भाइयों हमारा काम तो लगे रहना है। जैसे आम के दरख्त पे आम का पिंदा लगा रहता है, जबरदस्त बारिशें पड़ती हैं, हवाएं चलती हैं, दरख्त को हिला के रख देती है, ऐसी तेज हवाएं चलती हैं कि दरख्त को हिला के रख देती हैं, लेकिन वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है। जबरदस्त बारिशें होती हैं, वो लगा रहता है। वो तोड़ देना चाहती हैं उसके ताल्लुक को, दरख्त से काट देना चाहती है, लेकिन वो लगा रहता है। जब वो लगा रहता है तो फिर अल्लाह पाक उसके अंदर वो सब चीज़ें अल्लाह अपनी कुदरत से लाते हैं, उसका साइज बढ़ाते हैं, उसका रंग बदलता है, उसमें खुशबू आती है, उसमें अपनी कुदरत से अल्लाह रंग भरते हैं। तो भाइयों लगे रहेंगे, लगे रहेंगे और अल्लाह से मांगते रहेंगे, लगे रहेंगे, अल्लाह से मांगते रहेंगे। और अगर वो टूट कर गिर गया तो, अगर वो आम का पिंदा टूट कर दरख्त से गिर गया तो जो आना है वो आता नहीं, जो है वो भी चला जाता है। जो आना है वो आता नहीं, जो है वो भी चला जाता है। लगा रहेगा, जो आना है वो आता चला जाता है। टूट कर गिर गया तो परिंदे भी थोड़ा सा खा कर जख्मी करके उसे छोड़ देते हैं। अल्लाह पाक हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और मौत तक लगे रहना, मौत तक लगे रहना अल्लाह नसीब फरमाए। इस राह में अल्लाह हमें आगे बढ़ाए और इस राह की सिफात हमें अल्लाह नसीब फरमाए। उसके लिए लगे रहना, कुर्बानियाँ देते रहना, दुआएं मांगते रहना।